Very good morning. Hope you all are good. So let us start our new chapter. Your new chapter is chapter 5, creating web page using HTML. Okay. So you can see here. Chapter 5th. Okay. Chapter 5th, creating web page using HTML. My dear student, in this chapter, we will learn some important topics. Our first topic is add header and paragraph and line break option. Okay. Our second point is draw horizontal rulers. Horizontal ruler means HR. Okay, and color to the lines. Now come to third point. Our third point is change font size, font color and font style. Okay, now come to next option. Our next option is give marquee effect. Okay, now come to fifth option. Fifth option is add comment in HTML. Now come to next is change background color. Okay, next point is insert image, then set background image, create table, create order or unordered list, and last is insert item. Okay, please mute yourself. Mute yourself. Students, please mute yourself. Okay, so student, in this chapter, we will learn this point. Okay, so first we'll start how to add header in your HTML page. Okay, how to add header in your HTML page. First we learn what is a header. Header means, student, header, HTML header means headings are titles or subtitles that you want to display on a web page. Okay, header are like the chapter heading of a book. Header means क्या होता है बेटा? Chapter heading of a book. You can use 6 different headers in your web page. आप कितने headers use कर सकते हैं? 6 different header on your in your web page. But you may not use more than 3 at a time. Okay, header tag is written as H1 to H6 option. ठीक है? ओके, सो प्रैक्टिकल करके इसका देखते हैं हम. यस पुलकित, व्हाट हैपन बेटा? यस पुलकित, पुलकित मैम 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 आपकी आवाज क्लियर नहीं और बहुत धीरे आ रही है. और मैम एक बार और हेडर समझा दो ना. ओके, आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके मैम बहुत धीरे आ रही है. अच्छा, और जोर से चिल्ला के बोलो. ओके, हेडर मींस आई कांट हियर प्रॉपर्ली. ओके ओके, नो इशू नो इशू. पुलकित, हेडर मैम आपका माइक, मैम माइक क्या हो गया मेरे माइक को? यस Okay. Header means heading are titles or subtitles. Yes, ma'am, clear. Heading are title or subtitle that you want to display on a web page. Heading are like the chapter heading of a book. Good morning, ma'am. Good morning. Heading means आप लोग जैसे चैप्टर में हेडिंग होती है ना, हेडिंग मीन्स हेडिंग आर लाइक द चैप्टर हेडिंग ऑफ अ book. You can use 6 different header in your web page. आप कितने header use कर सकते हैं? 6, H1 to H6. आप लोगों ने लास्ट टाइम भी इसको यूज किया होगा. ओके, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं. So you can see here. You can see here, student. This is your
notepad window. Okay, and we write here some program using header. So look at here. First we write here HTML tag. Okay, then second tag is heading head tag. Then next tag is title tag. Title tag is closed. Okay, now come to next tag. Here head tag is closed. Okay, now come to body tag. Here we write heading tag. Okay, so we use head 1 to head 6 option. H1 is heading 1. You write here okay, and heading tag is close. H1 is close. Okay, done. This is your first heading. This is your second heading. Second heading means you write here H2. Okay, you write here H2. This is your third heading. So you write here H3. स्टूडेंट आप लोग नोटिस करना सिर्फ H1 to H6 ही आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं देंगे. ओके, उससे ज़्यादा वो लेगा भी नहीं. Your heading your heading is completed, and close your body tag, and here close your HTML tag. Okay, and press Ctrl S button. Ctrl S button is save button. Okay, you write here heading dot HTML. You write here your program name. Your program name is heading dot HTML. Okay, then you press save button. Go to your desktop, and you can see here this is your output. You can see here, student, you can see here this is your output. दिख रहा है आप लोगों को? गुंजन, यस गुंजन, बोलो बेटा. यस गुंजन. मैम नहीं दिख रहा है. ओके ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. ओके, you can see here this is your output. Okay, this is your web page. Yes, ma'am. Okay, look at here, this is your heading. This is your heading learning HTML. मैंने कोडिंग में यही लिखा था learning HTML, and this is your output. ये जो कैपिटल लेटर में दिख रहा है बेटा. Okay, this is a H1 heading. Next is H2 heading,
H3 हेडिंग, H4 हेडिंग, H5 एंड H6। H6 से आगे आप नहीं बढ़ सकते, उसके लिए फिर आपको CSS यूज करना पड़ेगा, दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ हेडिंग में सिर्फ कितने स्टेप्स होते हैं? 6। आप फॉन्ट के साइज को कितना स्टेप में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? 6। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। Now come to next option. Your next option is paragraph. My dear student, if you want to add any paragraph on your web page, so you use paragraph option. तो देखते हैं paragraph option के लिए हम क्या use करते हैं. So you can see here, you can see here, this is your notepad. Okay, हम इसमें ही use करके देखते हैं. पैराग्राफ, माय डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ के लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे? पी टैग। ओके, और ये टैग ऐसा होता है जिसमें आपको टैग को क्लोज करने की भी जरूरत नहीं होती। तो इफ यू वांट टू ऐड पैराग्राफ टैग ऑन योर वेब पेज, यू यूज p tag, you use p tag. Okay, and you write here some paragraph. Okay, suppose okay, so this is your paragraph, my dear student. This is your paragraph tag. Okay, listen carefully. Paragraph tag is not closed. Paragraph tag को आप close नहीं करते. Okay, so student, this is your paragraph program, and again we press Control S option. Again we press Control S option. Okay, yes, what happened? Yes, Chaitanya. Yes, ma'am, I was asking that, ma'am, this is part of which chapter? I am not able to understand. Beta, chapter 5. This is your chapter Okay. 5. So we have completed chapter 1, 2, and now we are directly on 5. No, Chaitanya. Wait. We have already learned chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 also. Now come to chapter 5. Okay. भूल That's गए? why I was little confused. भूल गए दीपावली में? Sorry. पटाखे के साथ कंप्यूटर भी फोड़ दिए। Okay, so okay, yes, what happened, Gunjan? बोलो बेटा। No, ma'am. No? Okay, so student, this is your paragraph. Please mute yourself. This is your पैराग्राफ, और पैराग्राफ को टैब को अगर आप ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। ओके, सो हमने ऐसा एक लाइन लिखा है पैराग्राफ के लिए, देन यू प्रेस कंट्रोल एस बटन। कंट्रोल एस बटन मीन्स सेव करने के लिए, जो अभी हमने कोडिंग किया है वो सेव किए। देन वी गो टू द आउटपुट पार्ट। आप कहाँ जाएंगे? आउटपुट पार्ट में जाएंगे। सो स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, दिस इज योर आउटपुट। वेयर इज आउटपुट? ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज योर आउटपुट। ये आपका क्या हो गया? एक पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? दिस इज योर आउटपुट। ओके, यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी। आप पूछ सकते हैं मुझे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू एड लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक मीन्स आप जब कंटिन्यू एक पैराग्राफ लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए आपको कुछ एक
ऑप्शन, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम पे जब हम काम करते हैं तो आप कंटिन्यू टाइप करते हैं बेटा, टाइप करते करते आपको जब नेक्स्ट लाइन पे आना होता है तो आप इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर HTML पेज में एंटर बटन का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो एंटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए या नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, देन हियर वी यूज ब्रेक ऑप्शन, ब्रेक ऑप्शन मीन्स BR, ओके, हियर वी यूज ब्रेक ऑप्शन। तो कैसे यूज करेंगे उसको देख ले, यू कैन सी हियर, you can see here how to use break option. So student, if you want to add break, या तो फिर आप जैसे मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कुछ लिख रहे हैं ऐसे, अब ये कंटिन्यू क्या होगा, टाइप होता जाएगा, ओके। अब मेरे को नेक्स्ट लाइन पे आना है, वेट, ओके। सो यू कैन सी हियर दिस इज अ वन पैराग्राफ, ये क्या एक वन पैराग्राफ है। अब आपको सेकंड लाइन पे आना है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे लास्ट पे, यू कैन सी हियर, यू पुट हियर BR, BR मीन्स ब्रेक लाइन। आपको यहाँ से जैसे ये पैराग्राफ खत्म हुआ, आपको नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, एक नेक्स्ट लाइन पे जाके आपको फिर से कुछ लिखना है, तो आप वहाँ पर क्या यूज करेंगे, BR, BR मीन्स लाइन ब्रेक ऑप्शन, ओके। अगर मैं यहाँ पर यूज करती हूँ 2 BR, ओके, 2 टाइम BR, तो वो कितने लाइन ब्रेक कर देगा, 2 टाइम, ओके। आप जितने भी BR यूज करेंगे उतने लाइन वो गैप करके देगा। सपोज मैंने यहाँ 4 टाइम BR लिखा, तो वो नेक्स्ट लाइन को कैसे, नेक्स्ट पैराग्राफ को या नेक्स्ट लाइन जो भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो 4 लाइन के बाद देगा। चलो मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको, ओके। Mute yourself, my dear student. Please mute yourself. Okay. Here your coding is completed, and then you press Control S button. You press Control S button. Okay. And we go to output part. Where is your output? You can see here. This is your output part. Okay. So आपने यहाँ से start किया. देन यहाँ पर आपने क्या यूज किया, BR, BR कितने टाइम यूज किया, 4 टाइम, तो वो 4 लाइन का गैप देके आपको देखो यहाँ से फिर से नेक्स्ट लाइन दे दिया। आ रही है बस समझ में। सो हियर योर ब्रेक ऑप्शन इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी, आप पूछ सकते हैं मुझे, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज horizontal ruler. How to add horizontal ruler line on your web page. Okay, horizontal line means क्या होता है, जैसे you can see here ऐसा कुछ बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये बॉक्स एक मिनट वेट, हॉरिजॉन्टल रूलर मीन्स क्या होता है, जैसे आपने कुछ ऐसा कंटिन्यूस ऐसा कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखा है, अब वो पैराग्राफ के बाद आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज आप लोग कई लोग कॉपी में कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ड्रॉ द लाइन, है ना। आप एक पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को या एक यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप ऐसा लाइन खींच देते। कई लोग तो एकदम कट पीट फूल वूल पत्ती वत्ती सब बना देते हैं, आप लोगों ने देखा है। वैसा ही कुछ ये होता है हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन। हाउ टू ऐड हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन इन योर वेब पेज, तो उसको हम लोग देखते हैं अभी कि वो कैसे ऐड करते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर, दिस इज योर कोडिंग पेज। कोडिंग पेज में ही अप्लाई करके देखते हैं। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज योर कोडिंग पेज। हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर मीन्स शॉर्टकट क्या होगा, HR टैग। हॉरिजॉन्टल रूलर को आप क्या बोल सकते हैं, HR टैग। HR टैग आर सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन across with width of the web page on the screen.
It is an empty tag that can be used to separate different part of the text from one another. Okay, you can also use it as a decorative tool and make the page more reliable. Okay, so student, you can see here how to add HR tag. Okay, so you write here HR tag. ओके, HR टैग आप लोगों ने लिखा. देन यहाँ पर एक पैराग्राफ मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ. ओके, HR टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती. आ रही है बस समझ में. सो यू प्रेस हियर कंट्रोल एस ऑप्शन एंड देन गो टू आउटपुट पेज. यू कैन सी हियर दिस इज योर HR लाइन. दिख रहा है आपको? आप एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये HR लाइन का यूज करते हैं. दिख रहा है आपको? आप HR लाइन की विड्थ, हाइट, ये सब भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. आ रही है बस समझ में. और HR लाइन ऐड करनी है वो भी और दिखा देती हूँ मैं आप लोग को. ओके, यू ऑल्सो यूज योर HR लाइन. HR कंट्रोल एस. HR की साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. ओके, HR में कलर भी कैसे कर सकते हैं, कैसे बताओ. HR देन प्रेस space bar key, then you write here color. If you want to change HR color line, आप लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये कोडिंग कर सकते हैं. HR देन स्पेस देन कलर इक्वल्स टू सपोज आपको कौन सा कलर चाहिए, ब्लू या रेड, वॉट एवर, रेड. ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं. देन प्रेस कंट्रोल एस बटन. ओके, you go to output page. Look at here, this is your HR line, horizontal line. और देखो इसका कलर भी चेंज हो गया. आ रही है बात समझ में. तो ये ऐसा HR यूज करते हैं. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी. ओके, now come to next option. Next option is formatting text. Student, you have any doubt? अरहम, भवि, भूमिका, चैतन्य, गुंजन, ये जितना मैंने पढ़ाया मीन्स हेडिंग, पैराग्राफ, ब्रेक लाइन, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन. यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी. एनी डाउट, प्लीज रेज योर हैंड. If you have any doubt, please raise your hand. Otherwise, we will continue the next point. Any doubt? Bhumika, Bhavi, Chaitanya, Gunjan, Ishika, Jainam, Keshav, Laksh, Pahal. No? Okay. So now come to next point. Next point is formatting text. Formatting text means you already know about formatting. You can also use formatting in HTML using font tag. है ना, आप लोगों ने font tag यूज किया. font tag, font style, font color, font size, ये सब आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा था. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चेंजिंग फॉन्ट. ओके, चेंजिंग फॉन्ट, चेंजिंग फॉन्ट साइज, चेंजिंग फॉन्ट कलर, चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल. ओके, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर हम कितने पॉइंट पढ़ेंगे, 4. ओके, फर्स्ट इज चेंजिंग फॉन्ट, changing font size, changing font color and changing font style. Okay, so you can see here
My dear student, you can see here how to change font style or font color or font size. Okay, on your web page you can see here. First we use font, changing font. Okay, suppose you use टाइम्स न्यू रोमन और बहुत सारे ऑप्शंस जो हम लोग यूज करते हैं ना फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट ये सब चेंज करने के लिए. सो यू कैन सी हियर फर्स्ट यू राइट हियर फॉन्ट ऑप्शन, फर्स्ट यू राइट हियर फॉन्ट टैग. ओके, फर्स्ट यू राइट हियर फॉन्ट टैग font, then press space and here you write font face option. Font face, press equals to inverted comma open, then you write here monotype. Okay, then you write here monotype, cursive option, here inverted comma is closed. Okay, then you write here some line, some text और जो भी आपको लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं बीच में. Okay, then you write here font tag is closed and BR भी यूज कर देती हूँ मैं. Yes गुंजन, what happened बेटा? Yes गुंजन. मैम इसमें अपन कलर डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी मैं बताऊंगी कैसे डालना है. ठीक. ओके. So you can see here, you press here Control S button and then you go to output page. This is your output page. You can see here, this is your output page. You press refresh button and you can see here. देखो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंज दिख रहा है. यहाँ पर हमने दूसरा फॉन्ट यूज किया था, ये लास्ट वाला फॉन्ट देखो, ये वाला. ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉन्ट. अगर आप यहाँ पर और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन, font, changing font size. Okay, now come to second option, how to change font size. ओके, HR का यूज करके तो हम लोग, सॉरी H हेडिंग का यूज करके तो कर सकते हैं, बट फॉन्ट और भी ज़्यादा आपको इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, देन यू यूज फॉन्ट साइज ऑप्शन. सो यू राइट हियर फॉन्ट टैग, फॉन्ट साइज टैग, font size tag. Okay, and press equals to button. आपको जितना भी फॉन्ट साइज चाहिए, सपोज मैंने 60 किया, टैग इज क्लोज्ड. यू राइट हियर क्लास 8 एंड फॉन्ट साइज टैग इज क्लोज्ड. ओके, BR यूज कर लेती हूँ मैं. Press Ctrl S button, then go to output part. You can see here, this is your output, class 8. Okay, आप यहाँ font size जो भी देना है आप दे सकते हैं. Okay, now come to font color option. So you can see here, first you write here font color, COLOR equals to inverted comma. ओके, इन्वर्टेड कॉमा. फॉन्ट कौन से कलर का देना चाहते हैं, सपोज ब्लू कलर. ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड हियर टैग इज क्लोज, क्लास 8 फॉन्ट टैग इज क्लोज. BR भी कर लेते हैं. प्रेस Ctrl S button, press Ctrl S button and
Go to output part. You can see here, this is your output. Blue color से दिख रहा है, font color change हो गया. Now come to font style. Now come to font style option. So student, you can see here, font style means मैं यहाँ प्रेस करके दिखा देती हूँ फॉन्ट स्टाइल. फॉन्ट स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, यू ऐड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ओके, सो यू कैन सी हियर, ये देखो मैं यहाँ वाले में करके, चलो यही कर देती हूँ. कंट्रोल बी मीन्स बोल्ड ऑप्शन. ओके, कंट्रोल बी मीन्स बोल्ड. और ये कंट्रोल बी को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा. ओके, एंड यू राइट हियर कंट्रोल आई ऑल्सो. कंट्रोल आई मीन्स इटैलिक ऑप्शन. हियर आई इज क्लोज. आई को भी क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा. क्यों क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्प्टी टैग नहीं है. यू यूज यू ऑप्शन. यू ऑप्शन मीन्स अंडरलाइन. ओके, एंड यू को भी क्लोज करना पड़ेगा. ओके, you press Ctrl S button, then go to output page. So you can see here, this is your bold option, second is your italic option and last one is underline. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेब पेज में आपके ऑप्शंस आ गए. So student, you have any query, you have any doubt, so you ask me. Okay, आप पूछ सकते हैं मुझसे. Maybe here class is over, so next class we will continue. My dear student, if you have any doubt, if you have any query, आप लोग next class में मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, so goodbye everyone. Next class we will continue. Okay, bye bye.